सर ब्रेकिंग भी हो रहा है, अच्छा अच्छा कट चलो, कट जा रही है आवाज। हाँ कुछ नेटवर्क। चलो, so in the last class I started problem set. So that vector space is clear now. How to check a set is a vector space? It clear? सर वो आवाज कट कट जा रही है। खटका आ रही है, बताइए। अब आ रही है? Yes, यस sir. सर। चलो Yes, ठीक sir. है। So let us start problem set 3.1. Problem set 3.1. So first problem, it's a simple calculation. Some vectors are given to you. Let u1 is some 1, 3, 2, 7. u2 is 0, 2, minus 3, 5. u3 is minus 1, 3, 1, minus 4 है ना? They are four lets vectors from R4, 1, 3, 2, 7 है ना? This u1 belongs to R4, R3 or R2. फोर है ना सर, फोर हाँ, होंगे। 4, yes, because it is four lets है ना? 1, 2, 3, 4. It means it is coming from R4, or we can say it is from V4. And in your vector space we are using the notation V4. So these are the vectors from V4 actually. V4 means you can say R4. So then evaluate u1 plus u2. P part is 2u1 plus 3u2 minus 7u4. So it is simple calculation. Just you have to add component wise and multiply component wise. u1 plus 2u2 plus 3u3 minus u4. So like here, suppose I am taking this second one. So 2u1 plus 3u2. You know this. You can write 2u1 means what? Just multiply 2. So 2u1 means 1, 3, 2, 7 plus 3u2 means 0, 2 minus 3, 5 and minus 7u2. Now I am taking this second one. Rest of the problems you can try. It's the same calculation. Minus 1, 3, 1, minus 4. Okay. And now just multiply. So 2 will be multiplying in all the vectors. So this will be what? 2, 6, 4, 14. Plus 3, 0, 0, 6, minus 9, 15. And this is minus. So you can write either write minus 7, or यहाँ if you are taking plus, so you can take 7 minus 21 minus 7 and 28. Okay, 7 minus 21 minus 7 and 28. Now just add its component wise. So firstly add all the first place vectors. So 2 plus 0 plus 7, it is 9. Then second place vector, 6 plus 6, 12. 12 minus 21, how much? Minus 9. 4 minus 9, minus 7. How much? 4 minus 9, minus 5, minus 7, minus 12. And the last one, fourth place vector, 14 plus 15 plus 28. So how much? 14 or 15? 29 and 28. 29. Plus 28. How much? 57 है ना? तो ये सिंपल कैलकुलेशन का एक प्रॉब्लम थी, ये कर सकते हैं आप, है ना? सेकंड प्रॉब्लम, in fact third problem is there after this in your syllabus. Let R plus be the set of all positive real numbers. Define the
operations define the operations of addition माइक म्यूट कर दो भाई अपना बाकी लोग and scalar multiplication yes as follow. So just attention here you have defined in this way. It is the important thing how the binary operation is defined. So they are defining u plus v means u dot v for all uv belongs to r plus, okay, and alpha u is u to the power alpha for all u belongs to r plus and real scalar alpha. Okay, so it is the way they are defining the binary operation. Means what? They are defining addition in this way. U plus v means what? U dot v. Yeah. Means I will not adding the vectors are coming from r plus. So it means what? If you are taking 2 plus 3, so 2 plus 3 how much here? 2 into 3 6 हो जाएगा. So it is the way they are defining. Means 2 plus 3 will be actually 2 into 3 6 है ना, not 5. Similarly alpha u, if you have 2 into 3 it will not 6, it will be actually u to the power alpha, so it will be 9. So in this way they have defined, you know, okay, this operation will be defining like this. So now they are saying prove that. क्वेश्चन प्रूफ भी आ सकता है और चेक करने के लिए आ सकता है. दे मे चेंज द लैंग्वेज इन द क्वेश्चन. प्रूव डेट को लिख सकते हैं चेक वेदर इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस और नॉट. तो उसमें यू हैव टू चेक. यहाँ पर प्रूफ की प्रॉब्लम है. प्रूव डेट R plus is a real vector space. No, I mean in short I am writing VS vector space. So you have to prove it's a vector space. Now tell me the steps. What is the first step? If you want to show Sir, some, पहले closer देखेंगे. so first thing you know the set should be non-empty. So it is already given that R plus be the set of all positive real numbers. So it is of course non-empty set, है ना? Because you have so many positive real numbers. So of course R plus is a non-empty set. क्योंकि नॉन एम्प्टी होना जरूरी है. अगर नॉन एम्प्टी नहीं हुआ तो वी कैन नॉट से एनीथिंग. So R plus is a non-empty set. चलो. Second thing what you have to check whether these two operations are binary or not. है ना? Yes sir, Closure property. Closure property. So you have to see that if you are taking two positive real numbers, the resultant should also belongs to R plus. है ना? So you can say first thing is closure property. Closure property. या कह सकते हो बाइनरी ऑपरेशन. एक ही बात है, मैंने आपको कई बार बताई बात ये. क्लोजर प्रॉपर्टी मींस सो हियर इफ uv belongs to r plus positive numbers, then u plus v is defined by uv. What about uv? If you are taking two positive real numbers, what about their product? It is also a positive real number or it may be negative. वो भी positive होगा sir. Always, है ना? So this is also No sir, belongs to R plus. of course, है ना? R plus. ये यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना? यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं साइड में एज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स अगेन अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना? इट इज द रीजन. ओके, अगर यहाँ पे ये u प्लस वी को u माइनस वी डिफाइन कर देते तो ये चीज बाइनरी नहीं रहती. क्योंकि u माइनस वी में क्या होता, अगर आप 3 प्लस 2 ले लेते या 2 प्लस 3 तो 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाता है ना. क्योंकि ऑपरेशन तो मैं कैसे भी डिफाइन कर सकता हूँ. अगर u प्लस वी को u माइनस वी डिफाइन कर देता तो ये बाइनरी नहीं रहता. लेकिन हियर इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन. सिमिलरली अल्फा u is equal to u to the power alpha, where u is always positive but alpha may be negative. But if alpha negative तो क्या it will not belong to R plus?
होगा सर, तब भी होगा। है ना, इट इज ऑल्सो ऑब्वियस, यस। है ना. दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू R plus. Reason I am writing as U belongs to R plus and, है ना, for any alpha belongs to R, U alpha also belongs to R plus. क्योंकि अल्फा पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट मे बी नेगेटिव, पर नेगेटिव से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ्रैक्शन में बदल देगा. इफ यू हैव u की पावर माइनस अल्फा, सपोज 2 की पावर माइनस 3, it will become 1 upon 2 की पावर 3, but that is again a positive number. So that means what? कि this is a binary operation. That means it has a closure property. First thing is this. So now let's move ahead. Second property. Now what I will have to check here? Now this should form a what? Commutative group Commutative group. with rest. After this operation, I will check whether, if I am writing the second property, suppose it was your first property, second property are under this operation, है ना, is a commutative group. ये हमारा क्लेम है, अभी इसको मैं क्लेम कर रहा हूँ, आई विल वेरीफाई इट, है ना. सर हमारा, इसमें एडिशन के रेस्पेक्ट में ही तो होगा, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए. हाँ एडिशन के लिए सही कह रहे हैं, सिर्फ एडिशन के लिए. यस, इसे हटा दो. चलो, सो नाउ फर्स्ट थिंग इज एसोसिएटिविटी. तो सेकंड के अंदर फर्स्ट थिंग एसोसिएटिविटी. तो आई विल चेक u प्लस v प्लस w. तो यू नो बाय द ऑपरेशन दिस विल बिकम व्हाट, u प्लस vw, है ना, क्योंकि v plus w is defined by this, and u plus vw, vw is again some real number, so u plus vw will become how much? UVW. Okay, now it's a product of real, हाँ. क्योंकि vw है ना, for all u vw belongs to R plus, and you know u vw they are positive real numbers, so positive real numbers always holds associativity, है ना. It will become actually u vw like this, and this can be written as u vw, है ना, because we know कि ultimately they are real numbers. As associativity, ये associativity मैं इस सेट पे नहीं लगा रहा हूँ, ये associativity मैं लगा रहा हूँ सिंपल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर तो आपका ये सिंपल प्रोडक्ट है ना, ये जो डॉट है, डॉट का मतलब क्या है, सिंपल प्रोडक्ट है. अब ये होल्ड्स इन R प्लस, तो यहाँ पर तो मैं लगा सकता हूँ ना. अब u vw, अब u v अगेन, u v is what, u plus v U plus v dot w, और दिस कैन बी रिटन एज u plus v plus w, है ना. तो देखो यहाँ ध्यान रखो ना, ये मत सोचना कि सर एसोसिएटिविटी प्रूव कर रहे हैं और एसोसिएटिविटी लगा दी सर ने, ऐसा नहीं है. आई वांट टू प्रूव एसोसिएटिविटी ओवर द गिवन ऑपरेशन, है ना, एंड हियर आई एम यूजिंग द एसोसिएटिविटी ऑफ द रियल नंबर्स. तो इसमें तो होल्ड होगी हमेशा, क्योंकि हमें पता है ये सब रियल नंबर्स होंगे, 2 4 5 कुछ भी. तो ये जो एसोसिएटिविटी मैंने लगाई है, ये आपकी कौन सी लगाई है, R प्लस की अंडर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, है ना, अंडर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन. यूजुअल का मतलब आपका जो आप सिंपल प्रोडक्ट लेते हैं, 2 3 10 6 वाला. So associativity holds. Second property, important property, existence of identity. Okay, existence of identity. अब देखो, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, if you have some element u plus e, this should equal to e plus u, this should equal to how much, u. अब u plus e means how much, u into e, this equal to u, है ना. So it means what, और now you know that u है जो है, u are the real numbers, positive real numbers, दे रखा r plus, यानी कि जीरो नहीं है ये, they are all positive real numbers है ना.
क्यों भाई? यस सर आर प्लस Yes, आपको sir. क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि यू इज नॉट जीरो, जीरो के अलावा सारे रियल नंबर्स हैं। तो अगर ये सारे रियल नंबर्स हैं तो इसमें तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यू के साथ। अगर आपके पास 2 है तो 1/2 भी होगा, है ना, मतलब यू का इनवर्स एग्जिस्ट Yes. करेगा। तो आई कैन से दिस इंप्लाइज दैट if u dot e is equal to u, so I can say that what e is equal to how much? 1 1, 1. है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी 1 आ रही है, और ये वैसे भी अंडरस्टूड था आपका कि क्योंकि इन्होंने एडिशन को डिफाइन करा एज ए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की आइडेंटिटी 1 होती है, हमें पता है ना। तो दैट्स व्हाई हियर u is equal to u, इट मींस e मस्ट बी 1, क्योंकि u आपके रियल नंबर्स हैं। तो दैट मींस आइडेंटिटी 1 एंड 1 बिलोंग्स टू r प्लस, सेट के अंदर है ये, तो इसका मतलब आइडेंटिटी इज एग्जिस्टिंग हियर। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ Inverse. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बताइए इनवर्स के लिए क्या करें? सर इसमें भी उसी तरह से हो जाएगा 1, आप मतलब हाँ, इनवर्स हो जाएगा उसका इनवर्स 1 के लिए यू नो, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनवर्स में क्या होता है? यू नो, इफ यू डैश इज द इनवर्स ऑफ यू इन आर प्लस, देन यू नो के यू प्लस यू डैश इक्वल टू यू डैश प्लस यू यू इक्वल टू डैश आइडेंटिटी 1 ना। आइडेंटिटी हम निकाल चुके हैं, एंड u प्लस यू डैश इज हाउ मच? u इंटू u डैश इज इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज दैट u डैश इज इक्वल टू हाउ मच? 1/u है ना, Upon you. हाँ 1/u मैं इसलिए लिख ये सकता हूँ क्योंकि u आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पर हम 1/u लिख सकते हैं। एक्चुअली 1/u आएगा कैसे कि आप u के इनवर्स से यूजुअल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सर वहाँ पे। हाँ यस सर u डैश को आई कैन राइट, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। है ना। ये एक्चुअली आया कैसे? आपने यहाँ पर u इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, तो u इनवर्स आपका u डैश 1/u आ गया, इज इक्वल टू u डैश डॉट u था, सो u डैश इज 1/u। तो इनवर्स क्या हो गया? हर एलिमेंट का इनवर्स 1/u होगा, एंड इट वाज आल्सो ऑब्वियस फ्रॉम द डेफिनेशन, क्योंकि योर एडिशन इज डिफाइंड एज अ मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन एडिशन ही होता तो क्या आता आपके पास? ये माइनस यू आता फिर, ये है ना, क्योंकि आपका एडिशन यस सर। मल्टीप्लिकेशन है, आइडेंटिटी आपकी 1 आ रही है, इसलिए 1/u ही आएगा ऑब्वियसली। तो और ये 1/u के r प्लस में बिलोंग करेगा? यस सर कर जाएगा। यस सर क्योंकि जब u आपका पॉजिटिव है तो 1/u इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, नो डाउट। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है। कॉम्यूटेटिव के लिए कॉम्यूटेटिविटी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप कॉम्यूटेटिविटी। सो यू नो दैट u प्लस v इज इक्वल टू uv, और uv को आई कैन राइट vu बिकॉज इट्स अ यूजुअल प्रोडक्ट, इट विल बी v प्लस v plus u है ना, v प्लस फॉर ऑल uv इन r। so that means your r plus with this addition, given addition, is a commutative group। चलो, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज नाउ, जो आपकी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप चेक कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये उसकी थी। तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज में क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद है क्या होती थी भाई? अल्फा अल्फा इनटू u plus v। हाँ, यहाँ पे लेकिन आपको सब चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन दिस वे, अल्फा u इज डिफाइंड u टू पावर अल्फा, है ना। तो अल्फा u Yes, प्लस sir. v, अब अल्फा u प्लस v को यू कैन राइट, देखो अब अलग अल्फा, अलग करेंगे। तो u प्लस v विल बिकम हाउ मच? uv। अल्फा uv अब इट इज हाउ मच? uv की पावर अल्फा अल्फा। यूवी। ये लिख सकता हूँ बाय दिस प्रॉपर्टी। हाँ यस सर क्योंकि अब वो क्या, स्केलर है ना वहाँ अब पे। मैं इसको अंदर ले आ सकता हूँ क्या ऐसे भाई? होल पावर यस सर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, इंडिसेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉपर्टी यस है ना। अब u अल्फा इनटू v अल्फा, अब u अल्फा v अल्फा को अगेन आई कैन राइट व्हाट? अब देखो u अल्फा इज अगेन अ वेक्टर, v अल्फा इज अगेन अ वेक्टर,
है ना, क्योंकि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि यू अल्फा जो होगा वो आपका कहाँ आ जाएगा, आर में, हमने प्रूव किया था बिलोंग्स टू आर प्लस। तो यू अल्फा बिलोंग्स टू आर प्लस, वी अल्फा बिलोंग्स टू आर प्लस, so it is again a vector. So this I can write u alpha plus v alpha. Okay, and this will become alpha u plus alpha v, है ना भाई। देखो ये u alpha v alpha अगेन अ वेक्टर। तो जब u alpha v alpha बिलोंग्स टू r प्लस, तो r प्लस के अंदर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन था आपका, इस तरीके से, है ना? वो ये जो यस जो prove लॉ कर था दिया। वो हम प्रूव किया इससे, हाँ, जो गिवन था उस बस अब u अल्फा को मैंने अगेन, u अल्फा इज अगेन अल्फा u, v अल्फा इज अल्फा v। चाहे तो ऐसे प्रूव कर दें, या यू कैन टेक पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए फिर राइट हैंड साइड ले लीजिए, बोथ द वेज आर करेक्ट। ओके, चलें आगे। यस सर। चलो फोर्थ नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी इसमें, इसी में अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा u, इंटू है ना। यू। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, u टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, है ना, बाय दिस प्रॉपर्टी जो स्केलर प्रोडक्ट है। इट विल बी हाउ मच, u अल्फा इंटू u बीटा। ओके, यस सर। अब u alpha into u beta is again, u alpha is a vector, u beta is a vector, so I can write प्लस में लिख यू देंगे आप, अल्फा प्लस प्लस यू बीटा। यू और ये बीटा। u alpha is how much, alpha u, अल्फा यू प्लस बीटा यू। तो ये भी होल्ड हो गई आपके पास। सिमिलरली alpha beta, alpha of beta u, this should equal to alpha beta u, this should equal to beta बीटा alpha u। ये अल्फा आप यू। चेक कर सकते हो, जैसे अल्फा बीटा यू लेके चलो, अल्फा बीटा यू लेके चलें अगर आप, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा u is u to the power beta। अब u की पावर बीटा is again a vector, so this can be written as u to the power beta, beta to the power alpha, है ना। अब alpha beta are real numbers, so they can be written as u की power alpha beta। okay, और u की यस power सर। alpha beta is how much by the property alpha beta। अल्फा बीटा यू। ठीक है, ऐसे ही इस वाले पार्ट को भी कर सकते हो आप, चेक करके दिखा दोगे। और सिमिलरली वन डॉट यू, तो वन डॉट यू का मतलब कितना हो जाएगा, यू टू दी अल्फा। अब यहाँ पे वन ये आपका स्केलर होता है, तो इट विल बिकम यू टू दी पावर वन, एंड यू की पावर वन इज ऑलवेज यू विच इज बिलोंग्स टू आर प्लस, तो है ये ना, तो इट होल्ड्स फॉर यस ऑल सर। यू इन वी। तो दिस मीन्स व्हाट, so this implies that R plus forms a vector space under the given operations। तो यहाँ पर एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस इन्होंने उसको चेंज कर दिया था ऑपरेशंस को, है ना। सो इट इज क्लियर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स में आपके पास कुछ भी ऑपरेशन आ सकता है इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड के विच प्रॉपर्टी एंड हाउ टू यूज। कोई ज्यादा कहते, इट्स नॉट दैट मच टफ, सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। Which of the following subsets, which of the following subsets of V4 are vector spaces? For coordinate wise addition and scalar multiplication, वो तुम करते ही हैं हमेशा। For coordinate wise addition and scalar multiplication, तो यहाँ पर मैं कुछ सेट लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। ये आपके क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन जैम वैम में बहुत आते हैं। कुछ सेट दे रखे होंगे आपको, और आपको पूछेंगे बताइए वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। जैम में, गेट में बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये आपके कुछ 4 वेक्टर्स हैं V4 में, है ना, और V4 के कुछ सबसेट्स दे रखे हैं। सबसेट्स क्या है, फर्स्ट सबसेट इज गिवन x4 is 0,
Second subset is given x1 is equal to 1. Next subset is given x2 greater than 0. D subset is given. रिकॉर्डिंग चल रही है भाई हमारी? नहीं, यस चल रही, ठीक है। यस सर, चल रही है, चल रही है। D is given x3 square greater than equal to 0. E is given x1 square strictly less than 0. F is given 2x1 plus 3x2 is equal to 0. And G is given x1 plus 2 by 3 x2 minus 3 x3, ये है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द सबसेट ऑफ V4 आर वेक्टर स्पेस। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज के हाउ दिस A इज अ सबसेट। इसका मतलब क्या आएगा, किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर उसमें तो क्या? x4 वाला जो एलिमेंट है वो 0 होगा। My question, how this A is a subset? They are asking which of the following subsets of V4. So my question, how A is a subset? देखिए, if you see here, actually ये आपके पास सेट क्या है? V4. V4 में ये इन्होंने एक ऐसा सेट लिया, इसको अगर मैं A को मान लीजिए, इसको मैं A से डिनोट कर दूं, तो A आपका एक ऐसा सेट है। सबसेट ऑफ V4 का मतलब क्या होगा कि वेक्टर तो इसके अंदर 4 ही होंगे, लेकिन इट इज गिवन दैट x4 इज 0. ओके, इसका व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट यू हैव 4 टपल्स सच दैट फोर्थ वेक्टर इज 0. V4 में ऐसा नहीं होता। V4 आपका क्या होता है? V4 मींस सिंपल R4. तो R4 में तो यू हैव ऑलरेडी x1 x2 x3 x4 सच दैट x1 x2 x3 x3 x4 belong to R. they are some real numbers. x3 x4 they belongs to real numbers R. तो यहाँ पर you know कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि साहब आपका कोई 4 कोई 0 होगा, यहाँ पे तो कुछ भी ले सकते Yes हैं sir. आप। लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी x4 is equal to 0. And I told you कि whenever you are imposing some restriction your set is shrinking, है ना? श्रिंक हो जाएगा सर, छोटा हो जाएगा। तो यानी कि A सेट जो है वो V4 से छोटा हो गया, क्योंकि आपको अब ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसका फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। लेकिन व्हाट अबाउट अदर थर्ड 1 2 3 का मतलब इसके ये क्या होंगे? वो कुछ भी होंगे। हाँ देखो, जिसके बारे में नहीं बोला जा रहा है यार x1 x2 x3 दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वही रहेंगे जो नॉर्मल रियल थे, है ना? तो ये इसका सबसेट हुआ नहीं हुआ? यस सर, हो गया। सबसेट हो गया, Yes sir. है ना भाई? क्योंकि V4 में आपके पास क्या था? ऑल द एलिमेंट्स कैन गेट एनी चॉइस। तो ये आपका पूरा R4 था एक्चुअली, 4 डायमेंशनल स्पेस। लेकिन हेयर A में रेस्ट्रिक्शन है कि योर x4 इज ऑलवेज 0। तो एक्चुअली आपका ये क्या है? इट इज इक्विवेलेंट टू R3। आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट 0 है भाई। जैसे आपका R3 है, R3 में अगर Z 0 कर दो तो क्या बन जाएगा? XY प्लेन, है ना? ये R2 में अगर मैं Y 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा? योर लाइन X एक्सिस। तो ये आपका सबसेट है। अब आपको शो करना है या चेक करना है कि ये सब स्पेस है कि नहीं है, मतलब ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। क्योंकि एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस नीड नॉट बी अ सब स्पेस। ये ध्यान रखना, नीड नॉट बी अ वेक्टर स्पेस, है ना? ये हम प्रूव करेंगे आगे, सब स्पेस शुरू करूंगा मैं, कि किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट वेक्टर स्पेस हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? सर लेकिन आ तो तो रहा है वैसे वहीं ये से नहीं है। है। सर सर सबसेट ये तो उसी 0 का है ना, तो सबसेट उसी का है तो क्या हो गया? है जरूरी क्या सर सबसेट इसमें है? जो है, जी बताइए। सर इसमें इसका इनवर्स एग्जिस्ट में। किसका इनवर्स कहां से आ गया? इनवर्स तो आप एडिटिव इनवर्स देखते हैं ना। देखो देखो, ये अगर आप ध्यान से देखिए कि ये आपके पास दीज आर द रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स हैं। अब आपको ये बताना है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए यू हैव ऑल द प्रॉपर्टीज। तो
if you see your first property is your binary ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन तो इसमें होल्ड होगा क्योंकि अल्टीमेटली दे आर रियल नंबर्स और V4 के सबसेट हैं। ये जो वेक्टर्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? V4 से आ रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन तो होल्ड होगा इसमें या नहीं होगा? बाइनरी तो होगा ही होगा, हो जाएगा, यस है ना? सर। कोई भी Because एलिमेंट डालेंगे वो बिलोंग टू R4 R3 होगा, यस जो सर, भी एलिमेंट डालोगे वो आपका V4 का ही एलिमेंट होगा। सो हेयर यस सर, योर क्लोजनेस विल ऑलवेज होल्ड, है ना? मीन्स फॉर एनी UV बिलोंग्स टू A का मतलब इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट 0 है। U plus V belongs to A and alpha U also belongs to A। इसे आप चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट लग रहा है तो। वैसे तो ये सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपका U V belongs to A है तो U क्या लेंगे आप? x1 x2 x3 0, क्योंकि x4 क्या है हमेशा 0, है ना? V क्या लेंगे? y1 y2 y3 0। तो जब आप U plus V करेंगे तो व्हाट अबाउट U plus V? x1 plus y1 x2 plus कोऑर्डिनेट y2, वाइज एडिशन हो जाएगा, यस सर, और ये फोर्थ क्या आएगा? 0 plus 0 0। भी हो जाएगा, हमेशा बिलोंग्स टू ए में होगा नहीं होगा? और सिमिलरली अल्फा यू, अल्फा x1, अल्फा x2, अल्फा x3, अल्फा इंटू 0 0। तो जैसे फोर्थ वेक्टर 0 आया वो वेक्टर से एडे में चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। क्यों? यस सर, हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है। बाकी एसोसिएटिविटी और सब चीजें यहाँ पर होल्ड होंगी बिकॉज दे आर द रियल नंबर्स। लेकिन हमें यहाँ पर ये चेक करना, हमेशा ध्यान रखो जब भी आपको वेक्टर स्पेस चेक करना है किसी सेट को, तो रियल नंबर्स अगर वो हैं तो आपको दो चीजें चेक करनी होगी इंपॉर्टेंट, एक तो आइडेंटिटी और एक इनवर्स। हम इन्हीं दो प्रॉपर्टी से नॉर्मली डिस्कार्ड कर दिया करेंगे कि कोई सेट है या नहीं है, ज्यादातर केस में, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द केसेस। तो हियर इफ यू सी योर x4 इज 0, तो ये बताओ इसके अंदर आपके पास आइडेंटिटी होगी क्या? इसमें आइडेंटिटी है या नहीं है बताइए? आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? व्हाट इज द आइडेंटिटी? मींस एडिटिव आइडेंटिटी ले लेंगे तो अरे व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ R4? सर वो 0 हो जाना चाहिए, -x1 0 पहले आइडेंटिटी तो बताओ क्या है, माइनस की बात कहाँ से आ गई? 0 0 0 0 0 0 0 0 4 टाइम्स। भाई यहाँ पर एक बात Yes, बताइए, sir. x1 x2 x3 को मैं क्या 0 0 ले सकता हूँ? हाँ सर ले सकते हैं, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर आपके पास इट इज नॉट गिवन एनी रेस्ट्रिक्शन के x1 x2 x3 कैन की नॉट। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है पूरी तरह। अच्छा, तो आप अगर कटे तो आप बताया करिए, ठीक है? तो हेयर इफ यू सी के योर, अब आ रही है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सबको आवाज आ रही है? यस सर, Yes, आ sir. रही है। बस अब अपनी आवाज बंद करिए, मेरी सुनिए। तो हेयर योर x1 x2 x3 दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इसका मतलब दे कैन बी 0, और x4 ऑलरेडी 0 गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन टेक, सो इट मींस यू हैव 0 0 0 0, दिस बिलोंग्स टू A। होगा या नहीं होगा ये बताओ? होगा सर। है ना? Yes, sir. क्योंकि x1 x2 x3 यस सर, तो आपके पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है ना? आइडेंटिटी एग्जिस्ट। और इनवर्स की अगर बात करूं तो -x1 -x2 -x3 एंड -x3 0। ये भी बिलोंग्स टू A है, क्योंकि x1 x2 x3 Yes, अगर sir. आपके पास सेट में है तो माइनस भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो कहां से आ रहे हैं? R से आ रहे हैं, है ना? यस सर, तो और तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज है। बाकी आप लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज hold naturally as they are the elements Of real number. of real number, या V4 कह दो, नंबर्स है ना? they are the elements, या ये लिख दो they are the elements of V4, या you can say as they are real numbers, so it holds naturally। commutativity, associativity
है ना, एनी अल्फा यू प्लस वी, ये सब होल्ड होगा नेचुरली। तो आप यहाँ पे इस लाइन को लिख सकते हैं। मेन थिंग आपको चेक करनी होगी ये वाली, है ना, क्या कि ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करने चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, अब देखो आप इस एग्जाम्पल को देख के आप बी को मुझे बता सकते हो डायरेक्ट कि बी आपका वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। ए तो वेक्टर स्पेस हो गया है ना, दिस इंप्लाइज दैट ए इज अ वेक्टर स्पेस। बी को आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्ट। बी का मतलब क्या हुआ, बी में आपके पास एक ऐसा सेट है x1 x2 x3 x4 सच दैट, क्या दे रखा है बी पार्ट में, सच दैट, वो x1 की वैल्यू 1 होगी। हाँ सच दैट x1 इज 1, है ना, ये गिवन है। तो इन द 1 yes, so in the B part it is the restriction that x1 is 1। इसका मतलब x2 x3 x4 ये क्या होंगे, what about these three vectors, सर वो रियल नंबर होंगे। कुछ भी हो सकते हैं बिलोंग्स टू यार। और ये सबसेट ऑफ B4 तो है ही। अब मुझे बताओ जल्दी से कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। नहीं है सर, इसका इनवर्स नहीं होगा। किसका इनवर्स नहीं होगा, 1 इसी का सर 1 का -1 माइनस इनवर्स से पहले क्या आता है? -1 हो इनवर्स से पहले क्या आता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होगा सर। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होगी इसमें। हाँ सर। 0 0 1 0 क्या 0 0 x4, सॉरी ये तो नहीं लिखा, 1 1 x1 1 है 0 सर। 0 0। यस सर। क्लास एंड हो गई तो मैं कंटिन्यू करूंगा भाई, ध्यान रखना, आई विल कंटिन्यू माय क्लास। ओके भाई x1 को मैं 0 नहीं ले सकता क्योंकि x1 पर यस रेस्ट्रिक्शन सर। है। तो ये आइडेंटिटी कहाँ बन रही है, आइडेंटिटी इज व्हाट, आइडेंटिटी इज 0 0 0 0, है ना, बिकॉज x1 इज 1, so this does not belongs to B। यही तो बात है, यहाँ पर आपके पास 0 था तो इसलिए मेरे पास आइडेंटिटी मिल गई, लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो देन इट विल नॉट फॉर्म आइडेंटिटी, है ना, मतलब दिस बिलोंग्स टू बी, सॉरी दिस बिलोंग्स टू बी बट 0 0 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना।